بات کا افسوس ہے کہ لوگ ابھی تک 1 سال جا کے سو کیوں رہے تھے. اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا. 1-2 مہینہ بھی کسی مسجد کو بند کرنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سال بھر کی اجازت کیا تھی؟ خیر بہرحال اب چونکہ کورٹ میں جا چکا ہے اور پولیس کے پاس جو ہے اس میں بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ کیوں بند کیے ہوئے ہو؟ کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے اور کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا ہے. سارے لوگ چھوٹ گئے اس میں, تو تم کیوں بند کر رہے ہو؟ یہ صرف اس کے علاوہ کہ ایک ظلم اور تعصب ہے, اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک کلنک رہے گا ہندوستان پہ. اور ساری دنیا نے اس بات کو نوٹ کیا ہے. یہ بات جو ہے تبلیغی جماعت والی بات جو ہے دنیا کے, چاہے امریکہ کی رپورٹیں ہوں چاہے ایمنسٹی کی ہوں, کہاں کی ہو, ہر جگہ اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ اس بات کو لے کر کے کس طرح سے پورے مسلمانوں کو, پورے ملک کے مسلمانوں کو بدنام کرنے, ذلیل کرنے اور ان کو خوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پرپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. دلی میں 1 سال پہلے نظام الدین مرکز کو تبلیغی جماعتیوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا, یوں کہیں کہ بلی کا بکرا بنایا گیا. بامبے ہائی کورٹ کا فیصلہ, کیرل ہائی کورٹ کا فیصلہ, تمام کورٹ کے فیصلے آئے. جو ایک فیک پروپیگنڈا چلایا جا رہا تھا اس پر الپ ورام لگانے کی کوشش کورٹ دوارا کی گئی. کیا کچھ ہو رہا ہے نظام الدین مرکز کو لے کر کے؟ جب سارے دھارمک استھل کھل چکے ہیں تو نظام الدین مرکز بند کیوں ہیں؟ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے دلی مائنورٹی کمیشن کے ایکس چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں, اور میں ان سے جاننا چاہوں گا سر, ابھی کچھ خبریں ویب پورٹل پر آ رہی ہیں کہ نظام الدین مرکز کو پوری طریقے سے کھول دیا گیا ہے. کتنی سچائی ہے ان دعووں میں؟ کہ ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط ہوگی بھی اطلاع. یہ آ رہی ہے کہ صرف 50 لوگوں کو شب برات کے موقع پر وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں, مسجد تو 5 وقت کی نماز کے لیے ہوتی ہے. شب برات تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس کو, شب برات کے لیے مسجد جانا ضروری نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو کورٹ میں ایک کیس گیا ہوا ہے کہ اسے کیوں بند کر رکھا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال سے انہوں نے بند کر رکھا ہے. اب اگر 1 سال جو ہے کورونا وائرس تو چند گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. وہ چند گھنٹے میں مرنے والی چیز 1 سال تک وہاں تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے, تو اسے کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یہ میں نے ابھی چند دن پہلے میں نے اسے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے. یہ پوچھا ہے میں نے اپنے دلی ہائی کورٹ کے سے بھی اور پولیس سے بھی, سب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ یہی کام جو ہے کسی مندر اور کسی گردوارہ اور کسی چرچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ساری بات ہے, یہ در حقیقت جو کہ موجودہ حکومت ہے اس کی ایک پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرو, کسی طرح سے بھی تنگ کرو. اور یہ شروعات اسی وقت سے ہوئی تھی, کچھ نہ کچھ مسئلہ بنا کر کے. اور جب تبلیغی معاملہ آیا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی معاملے میں جو وہاں پہ 800-900 کتنے بھی لوگ وہاں پہ اندر تھے, صرف ان پر الزام لگ سکتا ہے. اور بعد میں ثابت ہوا, بار بار یہ کورٹوں میں ثابت ہوا, دلی کورٹ میں اور بامبے جو آپ نے کہا مدراس ہائی کورٹ میں اور بہت سے ہائی کورٹوں میں جو ہے دوسرے لوور کورٹوں میں بھی ثابت ہوا کہ ایسا کچھ ثابت ہی نہیں ہو پایا کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی کورونا پھیلایا ہو یا کورونا لے کر کے آئے ہوں یا کوئی ایسا پروگرام ہو. ایسا کچھ ثابت ہی نہیں ہو پایا. اس لیے سبھی لوگ ایک ایک کر کے چھوٹتے چلے گئے اور وہ اپنے گھروں کو گئے. جو دلی کے تھے یا قائدہ اپنے گھروں کو گئے, جو باہر کے آئے ہوئے تھے ملیشیا انڈونیشیا کہاں سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی گئے. شاید چند لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہوں, اس لیے عدالتیں دھیرے دھیرے کام کرتی ہیں اور مختلف عدالتیں مختلف طریقے سے کام کرتی ہیں. لیکن سب کے سب چھوٹ جائیں گے, اس لیے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہو پایا کہ وہاں پہ کوئی ایسی پلاننگ تھی یا وہاں پہ کوئی ایسا آدمی تھا. وہ بھی ثابت نہیں ہو پایا کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے جن کو جو کووڈ تھا, جن کو نہیں تھا. لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے گودی میڈیا نے, اور بہرحال گودی میڈیا کو شاید اوپر سے ہی ملتی ہے, ان کو یہ شاید ملی کہ تو اس بنیاد پر مسلمانوں کو الزام لگاؤ, ان کو بدنام کرو. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا گیا, پیٹا گیا, لنچنگ ہوئی اور گاؤں سے نکالا گیا پورے ملک میں. یہ نہیں کہ صرف معاملہ تو صرف جو ہے دلی میں ایک مسجد کا تھا, لیکن اسی کو بنیاد بنا کر کے پورے ملک میں, یہاں تک کہ انڈمان اینڈ نکوبار میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمان دیکھ کر کے داڑھی ہے اور ٹوپی ہے, کرتا ہے, اس کی پٹائی اس کی شروع کر دی. اس کی دلی کے اندر خود ہی لنچنگ ہوئی, یہاں پر ایک گاؤں میں ہوئی ہے.
जिस पे हमने कमीशन में रहते हुए उस पर काफी उस पर एक्शन लिया था इन सारे मामला पे। और फिर रोजाना जो है एक जो बुलेटिन आता था उसमें तबलीगी जमात का नाम लेना शुरू किया। मैंने इसको बंद कराया। मैंने बहुत ही सख्ती के साथ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को खत लिखा कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर यही करना है तो आप सारे मजहबों का दीजिए कि कितने जो है हिंदुओं को हो रहा है, कितने सिखों को हो रहा है, कितने क्रिश्चियन को हो रहा है, आप दीजिए आप। लेकिन वो नहीं दे रहे थे, सिर्फ खाली तबलीगी जमात के दे रहे थे और उससे बहुत ही गलत मैसेज जा रहा था। तो फिर मेरे लेटर जाने के बाद, बहुत सख्त लेटर था, उसके जाने के 2 दिन के बाद ये बंद हुआ। फिर मरकजी सरकार ने बंद किया और सबने बंद किया। लेकिन उसी के साथ साथ जो है पूरे मुल्क में जो नफरत जो है फैलाई गई और वो काफी दिनों तक फैलाई गई। और उसी में ये जो बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने मरकज जो है, मरकज असल में तो मस्जिद है, वो उसको मस्जिद बंगले वाली बोलते हैं, तो बंगले वाली मस्जिद को उन्होंने बंद कर दिया। तो चलिए, अगर बंद कर दिया है कि उनके ख्याल में ही था कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा था, लेकिन अब जब सारे लोग छूट गए, सब लोग छूट गए उसमें, तो उसको अब आप उसको खोलिए उसको। अभी जब बहुत ज्यादा बात हुई तो पुलिस ने वहां से किसी आदमी को बुला के उसकी चाबी दे दी, लेकिन उनसे ये कहा कि खोलना मत। तो चाबी दे दी मेरे घर की या मस्जिद की, और मुझसे कहते खोलना मत, तो क्या फायदा, चाबी अपने पास रख के रहो। तो उसके बाद अब जो है कोई मेरे ख्याल है कि वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है कोर्ट में गया है कि क्यों इसको इसको बंद कर रखा हुआ है। तो उसके जवाब में उन्होंने ये शोषा छोड़ दिया कि 50 आदमी वहां पे शब बारात में इबादत कर सकते हैं। अरे भाई, वो तो अपने घर में भी कर लेंगे। इसको मस्जिद जो है, मस्जिद 5 वक्त की नमाज के लिए होती है, 5 वक्त की नमाज के लिए खोलो। मैं समझता हूँ मजबूरन वो खोलेंगे। और ये जो वक्फ बोर्ड ने किया है, इसको और पहले करना चाहिए था। बल्कि अगर मैं होता तो मैं कमीशन की तरफ से दायर कर चुका होता कि भाई ये क्या मुसीबत है ये। इससे पहले भी जो है जब यहाँ पर बहुत से लोगों को वहाँ यानी खुद मरकज की मस्जिद से और दिल्ली के दूसरी मसाजिद से उठा करके तकरीबन 2,500-3,000 लोगों को दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स में डाला गया था। और उनको बिल्कुल जानवरों की तरह से उनसे मामला किया जा रहा था। खाना उनको नहीं मिलता था, नाश्ता उनको नहीं मिलता था, या आता था तो बहुत देर से आता था। और उनको एकदम से बाहर से जैसे कि कोई जानवर हो, उनको बंद करके रखा हुआ था। तो मैंने उस पर बहुत ही सख्ती के साथ जो है सारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको, और जो डीसीपीज हैं उस इलाके के, उनको मुस्तकिल खत लिख करके बोल करके उन सबों को जो है खाना वाना दिलवाना शुरू किया उसको। तो इसमें काफी करना पड़ता है। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि लोग अभी तक 1 साल जाके सो क्यों रहे थे, उससे पहले करना चाहिए था। 1-2 महीना भी किसी मस्जिद को बंद करना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो साल भर की इजाजत क्या थी। खैर बहरहाल अब चूंकि कोर्ट में जा चुका है और पुलिस के पास जो है इसमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। भाई क्यों बंद किए हुए हो, कोई बात तो हुई नहीं है और कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ है, सारे लोग छूट गए उसमें, तो तुम क्यों बंद कर रहे हो। ये सिर्फ इसके अलावा कि एक जुल्म और तासुब है, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो ये भी एक तरह से एक कलंक रहेगा हिंदुस्तान पे। और सारी दुनिया ने इस बात को नोट किया है। ये बात जो है तबलीगी जमात वाली बात जो है, दुनिया के चाहे अमेरिका की रिपोर्टें हैं चाहे एमनेस्टी की हो, कहाँ की हो, हर जगह इस बात का जिक्र होता है कि इस बात को लेकर के किस तरह से पूरे मुसलमानों को, पूरे मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करने, जलील करने और उनको खार करने की कोशिश की गई है। तो ये बात भी जो है, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खाते में ये बात दर्ज हो गई कि इन लोगों ने एक बिला वजह की बात जो है मुल्क में फैलाई और उसकी वजह से मुसलमानों को बदनाम किया, तंग किया। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो कि वहां मस्जिद में थे, बल्कि पूरे मुल्क में गांव-गांव में इन्होंने फैलाया। गांव-गांव में लोगों को कहा गया, लोगों ने कहना शुरू किया मुसलमान कोई आ रहा है तो तुम बाहर जाओ, बल्कि मुसलमान को देखा तो उसको कोरोना कहना शुरू कर दिया। ये सब बातें हुई हैं, सब बातें मीडिया में मौजूद है, वीडियो इसके मौजूद है। तो ये नफरत जिन लोगों ने फैलाई है, इसका वो बहरहाल भुगतेंगे वो। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह की कार्रवाई हमारी तरफ से होनी चाहिए थी, जल्दी नहीं होती है। 1 साल के बाद जो है कोर्ट में जाने की क्या बात है, वो तो 2-3 महीने के अंदर ही जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जो भी है। और उससे जो है एक और दोबारा एक मैसेज जाएगा लोगों को, अवाम उन्नास को जाएगा कि भाई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इस जुल्म के खिलाफ उनको बोलना चाहिए था। अगर नहीं बोल, बहरहाल अब बोल रहे हैं। आगे अगर इस तरह की कोई बात हो, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत ही पहले बोलना चाहिए। और बोलने से फायदा ना हो तो कोर्ट में जाना चाहिए। इसलिए बहरहाल कोर्ट इसी काम के लिए
सर, एक सवाल हम यहाँ लेना चाहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि निजामुद्दीन मरकज को, तबलीगी जमातियों को जगह जगह निशाना बनाया गया और निजामुद्दीन मरकज को जब सारे धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, सिर्फ निजामुद्दीन मरकज पर ही ताला लगाया गया है। क्या ये एक आइडियोलॉजी के तहत काम किया जा रहा है या ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है दूसरे समुदाय के लोगों को? देखिए, हमारी सरकार है तो हमने इनके निजामुद्दीन मरकज को बंद कर दिया, मुसलमानों के ऊपर नकेल कस दी और फिर इसी का वोट बैंक के तहत काम करेगा और ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, हमारी सरकार थी तो ये काम हमने कर दिखाया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या इन्हीं वोट बैंक की राजनीति के इस्तेमाल के लिए तबलीगी जमात यानी कि निजामुद्दीन मरकज को अभी तक बंद करके रखा हुआ इन लोगों ने? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये तो उसका एक, इसको यानी समझ लीजिए बाई प्रोडक्ट है। वो जो नफरत की सियासत है उसका एक बाई प्रोडक्ट है। उनको कुछ बात भी मिल जाती है, कभी वो लैंड जहाज शुरू हो जाता है, कभी वो लव जहाज शुरू हो जाता है, कभी कन्वर्जन के नाम पे लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं, कभी काऊ के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे। यानी कुछ मौका मिल जाए उनको तो उसी में उनको कोरोना के जमाने में, जबकि कोरोना जो है, मैं समझता हूँ कि कोरोना जो मुल्क में आया है वो ट्रम्प साहब के साथ जो 500-600 लोग आए थे वो लोग लेकर आए थे, जबकि उस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं शुरू हुआ। उन्होंने यहाँ पे ला करके उनको पूरा एक बहुत बड़ा स्टेज उनको उनको बना के दिया। वो लोग हैं जो कोरोना लाए थे, उसके बारे में कोई बात भी नहीं होती, कोई उसका रिसर्च भी नहीं करता कि कोरोना जो है किस तरह से, जबकि अमेरिका में फैला हुआ था उस वक्त, और वो लोग आकर के यहाँ पर पूरा जो है ना बैंड बाजा बजा के चले गए और यहाँ पे फैला के चले गए। तो ये एक बहाना बनाया गया, एक बहाने की तलाश रहती है, भी कल एक और मिल जाएगा उनको। कल जो है कोई कोई मुसलमान कोई जुर्म करेगा तो सारे सारे मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान के 200 मिलियन मुसलमान है, सबको जुर्म कर देंगे। भाई जुर्म तो होता है, इंसान करते रहते हैं, इंसान ही है। कोई कत्ल कर देता है, कोई चोरी करता है, कोई चोरी कर देता है, लेकिन उससे ये नहीं होता है कि सारे मुसलमान ऐसे हैं या इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन ये जो भक्त लोग हैं या उनका जो गोदी मीडिया है, ये इस तरह से पिक करके उसको ऐसा दिखाता है कि जैसे सारे मुसलमान ही यही काम करते हैं। तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि अगर यही बात दुरुस्त होती तो हर कौम पे होता। कल जो है हिंदू भी जो है ना कत्ल करता है और ज़िना करता है और गलत काम करता है, तो फिर शुरू कर दो भाई सारे हिंदू मजहब ऐसा सिखाता है। ऐसा नहीं है, गलत बात है। अगर कोई करेगा तो गलत है, लेकिन मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ ये लोग इसको जायज समझते हैं। और यही अभी आज जिस वक्त जो आज हाकिम है और उनके साथ जो मीडिया वो ये कर रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सब खत्म होगा। इन लोगों का ये जो मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, ये बंद होगी। और ये भी जो है एक दिन अफसोस होगा इनके लिए, इनके नाम अमाल पे एक कलंक इनके लगा रहेगा कि इनको जब मौका मिला तो इन्होंने विकास के लिए, सबकी विकास वगैरह की बातें करते थे, वो तो नहीं किया, बस नफरत ही फैलाई। नफरत की खेती यहाँ खूब हुई, जो कि साल से, बल्कि सैकड़ों साल से नहीं हो पाई थी, वो इस 6 साल में इन्होंने कर डाली उन्होंने। तो ये चीजें सामने आएंगी और ये बहरहाल एक दिन जो है इसका हिसाब भी पब्लिक लेगी। पब्लिक जब 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 वोट देती है, इलेक्शन में आती है, तो पब्लिक जो है इसका हिसाब भी लेगी। तो भाई तुमको जो मौका मिला था और तुमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खाली इस किस्म के ऐसे मसाइल में लोगों को उलझा कर रखा जिनका कुछ भी होने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं, न मुल्क को फायदा होता, न कौम को होता है, न किसी को भी होता है।